Hello friends, Kalrao School Halol presenting this video for standard 9th English medium subject SS. Friends, today we are going to discuss about chapter number 10 organs of the government part number 3. In our previous two part we had already discussed about the lesson. Okay, those who hadn't seen this video, firstly go and watch that video so that you will get the idea about the lesson. Now we will start today from the legislator at the state level. Okay, legislator at the state level, here given point wise legislator at the state level के ऊपर किस तरीके के legislative assembly होती है. तो legislative assembly के अंदर each state have legislator and it is called legislative assembly. हर एक स्टेट के अंदर एक legislator होते हैं और उसको legislative assembly कहा जाता है. legislative assembly उसको क्या कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है. लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, द अदर हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेटिव इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल. जो दूसरे हाउसेज होते हैं लेजिस्लेटिव के उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है. बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, तमिलनाडु एटसेट्रा स्टेट हैव टू हाउसेज. विच स्टेट हैव टू हाउसेज, हियर गिवन द लिस्ट. बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु हैज अ टू हाउसेज. स्टेट हैव टू हाउसेज. दिस there are legislative council is the upper house and the legislative assembly is the lower house. Legislative council is called the upper house and legislative assembly is called the lower house. Gujarat state does not have a legislative council. This is very important point. Which state have a legislative council and which state doesn't have a legislative council. So for that you have to study about this. Okay, various state have a different number of the member in the legislative assembly. Every state has a different number of the members into the legislative assembly. As per the provision in the constitution, the minimum number of the member of the legislative assembly is 60. You must have to remember as per the provision of the constitution into minimum number of the legislative assembly is 60 and the maximum number is 500. Okay, so this is very important point. The number of the member of the गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर कितने हैं, 182 सीट के लिए इलेक्शन किए जाते हैं जब गुजरात इलेक्शन होते हैं तब. क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, स्टेट लेजिस्लेटर के लिए मेंबरशिप करनी है तो उसके लिए विच आर द क्वालिफिकेशन फॉर द एनी पर्सन हु इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया. कोई भी इंसान जो इंडिया का सिटीजन है एंड इज़ द एज ऑफ द 25 और जिसकी एज 25 है और ज़्यादा है एंड इज़ नॉट अ स्टेट और अनकॉन्शियस माइंड. ओके, जो इंडिया का सिटीजन है 25 ईयर से ज़्यादा एज है और उसका दिमागी संतुलन सही है, इंसॉल्वेंट एंड और क्रिमिनल, वो कोई क्रिमिनल नहीं है ना उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, can contest the election of the legislative assembly. This is the qualification to become the member of the state legislative. Now time period, उसका time period क्या होता है. The legislative assembly is not a permanent house. Legislative assembly is not a permanent house. The time period is 5 years. Remember this, which is not a permanent house. The legislative assembly is not a permanent house. Time period is about the 5 years. After giving the period of the legislative assembly is dissolved in an unusual situation wherein the government cannot function as per the constitutional provisions or the government cannot be formed, then the government can send a recommendation to the President of India to dissolve the government. Okay, so this is very important procedure. The president then dissolve the legislative assembly and impose the president rule in that state. During that time period, the governor, administrator, the state for the purpose of the smooth functioning of the legislative assembly. Okay, speakers and deputy speaker are elected by the member of the among themselves. So this is the process. The member of the legislative council are elected from among the institutions of the local self government. The member of the legislative council are elected from the institution from the local self government, registered
guards, teachers or a security and a higher secondary by the educators to be eligible as a member of the legislative council. This qualification is required to become the legislative council, member of the legislative council. The candidate should be the age of 30 years or more, उसकी 30 से ज़्यादा एज होनी चाहिए, सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो परमानेंट हाउस कहा जाता है. लाइक राज्यसभा, ईच ऑफ इट्स मेंबर गेट्स इलेक्टेड फ्रॉम अ टीम ऑफ 6 years. बराबर जी, जैसे राज्यसभा के अंदर होता है वैसे यहाँ पे भी 6 साल के अंदर टीम के अंदर मेंबर सिलेक्ट किया जाता है. इट्स 2/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 years. ओके, हर 2 साल के अंदर 2/3 मेंबर क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं. अ स्टेट हैज़ टू डिसाइडेड वेदर टू कीप अ लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉट. बराबर, स्टेट डिसाइड करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल रखनी है या नहीं रखनी है. गुजरात डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. गुजरात के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. लाइक द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ मोर पावर. लोकसभा जैसे लेजिस्लेटिव हाउस के अंदर ज़्यादा पावर होते हैं. ऑर्डिनरी एज वेल एज द मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन इट. ऑर्डिनरी और मनी बिल दोनों लोकसभा के अंदर प्रेजेंट किए जाते हैं. आफ्टर बिल पास थ्रू द वेरियस स्टेप. बराबर, अलग अलग स्टेप के अंदर हमने आगे भी पढ़े हैं कि हाउ बिल बिकम एन एक्ट, उसकी जो पूरी प्रोसेस हमने पढ़ी है. बराबर, उसके थ्रू अगर एक बार पास हो जाए स्टेप के थ्रू, बाय दैट सेंड टू द गवर्नर. बराबर, जो हेड होता है स्टेट का उसको गवर्नर कहा जाता है, तो उसको दिया जाता है साइन करने के लिए. आफ्टर द गवर्नर साइन, जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है. बराबर है. नेक्स्ट पॉइंट है एग्जीक्यूटिव. The most efficient, effective and the central organ of the government is executive. नंबर 2 जो है most effective, बराबर है efficient, effective और central organ, उसको क्या कहा जाता है, executive कहा जाता है. Union executive means it central government. Union executive का मतलब क्या होता है, central government होता है. Political executive comprising the administration of the prime minister and the cabinet minister, president, vice president and the bureaucrats. Political and administrative executive officers and employee are the direct contact of the people. Who are into the direct contact of the people? Political, administrative, executive officer and employees. Okay, the people are influenced by their work. Okay, people are observing their work, people are influenced by their work. The executive implements the law formed by the legislator. The administrative executive carries out the work of the implementing of the politics programs planning done by the government, keeping into the view the aspirations and the expectations of the people. The political executive change every 5 years. The political executive were change every 5 years. Okay, every 5 years the political executive were changed. Or if power is given up, okay, wherein the administrative executive is formed by the permanently appointed the bureaucrats and hence it is permanent. However, the retirement age of the administrative bureaucrats is different from the different state. अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग different age होती है उनके रिटायरमेंट एज की. Before their retirement, if they misbehave, see वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर उनके रिटायरमेंट से पहले उनसे कोई मिसबिहेव हो जाता है और शोज द लेक ऑफ द इफिशियंसी टू वर्क, काम बराबर नहीं करते हैं, दे कैन बी रिमूव, तो उनको रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम देयर पोस्ट आफ्टर फॉलोइंग प्रिस्क्राइब द इंक्वायरी procedure. The political executives are the member of belonging to any political party. The political executive are the members belonging to the any political party. Their main qualification is to get elected based on their individual honesty to the party, public choice and the public passing. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू बी अपॉइंटेड परमानेंटली. देखो यहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन दी गई है. वॉट एवर द क्वालिफिकेशंस आर देयर हियर गिवन इट. एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव रिक्वायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, एक्सपीरियंस और पासिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू अपॉइंटेड परमानेंटली. बराबर है. द सर्विस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, क्लास 1 क्लास 2 की बात की जाती है, उसके लिए सिविल सर्विस
की जो एग्ज़ाम होती है वो पास करनी पड़ती है। एट द सेंट्रल द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो ये जो है वो एग्जीक्यूटिव, जो हम कहते हैं क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर जो काम करते हैं, उनकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, कैसे उनको अपॉइंट किया जाता है, कैसे वो काम करते हैं, किस तरीके से उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है और किस तरीके का काम उनका रहता है, वो एग्जीक्यूटिव के बारे में था। नाउ न्यू पॉइंट इज अबाउट द प्रेसिडेंट, ओके। प्रेसिडेंट हम सबको पता है, बराबर। द प्रेसिडेंट इज the constitutional head of India. All the executive powers of the federal government is given to the president by the constitution. Constitution ने उसको हर तरीके के पावर दिए हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने के थ्रू। all the administration of the central government is carried out in the name of the president, okay। एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो किसके नाम से चलता है? प्रेसिडेंट के नाम से चलता है। ही इज द हेड ऑफ द नेशन एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ओके। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द नेशन एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द रिपब्लिक इंडिया। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? विच आर द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट? द प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट क्वालिफिकेशन उसकी क्या होनी चाहिए? वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए एंड शुड बी 35 years of age or above, और 35 साल की उसकी एज और उससे ज़्यादा भी चलेगी। ही शुड नॉट अ सैलरी एम्प्लॉय, वो कोई एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट जो सैलरी लेता हो बाय द गवर्नमेंट और होल्ड बाय द ऑफिस और प्रॉफिट। ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कोई भी पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का किसी भी तरीके का मेंबर नहीं होना चाहिए। द प्रेसिडेंटल इलेक्शन इज indirectly carried out by the members of the both the houses of the parliament and the members elected to the state legislative assembly. A president is elected from the term for the 5 years. president कितने साल के लिए टाइम पीरियड के लिए आते हैं? he came for the work for the 5 years and can be consist the election after the completion of his term. When the president is in the power, neither criminal case can be framed against him nor an order or arrest of the improvement can be issued, okay। so this is the qualification for being the president. Now functions and the power, उनको क्या काम करने होते हैं, उनके पास क्या पावर होता है? he appoints the leader of the party, उनके पास क्या पावर होता है? तो वो पार्टी के लीडर्स को अपॉइंट्स कर सकते हैं, पर he is a power to appoint the leader of the party who has gained the majority into the general election as the prime minister. Then with the constitutional of the prime minister he appoints the other minister of the cabinet, और उसके बाद ही appoints the leader of the party, okay। वो पार्टी के लीडर को अपॉइंट करता है और जो मेजोरिटी पार्टी जीत के आती है इलेक्शन के थ्रू, बराबर, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर को वो ओथ दिलाते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो दूसरे अपने कैबिनेट मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं। ही एडमिनिस्टर द ओथ एंड distributes the portfolios to the ministers as long as the cabinet enjoy the support of the majority of the members of the Lok Sabha. The president cannot dissolve the cabinet. President is the head of the defense force of the country. This is very important point. Who is the head of the defense force of the country? President is the head of the defense force of the country. The president has a power to declare war. President के पास power होता है war declare करने का, case the war or conclude territorials with the other countries. He appoints the judges of the Supreme Court and High Court, और उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की अथॉरिटी होती है। गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, वो अपॉइंट कर सकता है। ऑटर्नरी जनरल को अपॉइंट कर सकता है। कंप्ट्रोलर एंड द
ऑडिटर जनरल को अपॉइंट कर सकता है। ये सारी पोस्ट जो है दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू अपॉइंट ऑल दैट मेंबर। ही अपॉइंट्स द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्स, ही ऑल्सो अपॉइंट द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्स। उसकी क्या पावर है वो यहाँ पे बता रहे हैं। ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको पता होगा यूपीएससी की एग्जाम आती है बराबर, तो उसके जो चेयरमैन होता है उसको सिलेक्ट करने का हक किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट हैज़ एन ऑथोरिटी टू सिलेक्ट द chairman or appoint the chairman of the Union Public Service Commission and its ambassadors to वेरियस नेशन। अलग अलग देश के एम्बेसडर को जो सिलेक्ट करने का जो अथॉरिटी होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। 10 वास्ट ऑथोराइज्ड एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आर वेस्टेड इनटू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ये सारी अथॉरिटी होती है। ही कैन ग्रांट द पार्डन, ग्रांट पार्डन, वो किसी क्रिमिनल को माफ़ी भी दे सकता है। और टू रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ एनी कन्विक्टेड पर्सन, कोई किसी क्रिमिनल को अगर बहुत ज़्यादा सज़ा हो गई है तो वो उसको माफ़ी भी दिला सकता है, वो पावर उसके पास होता है। कैन पोस्टपोन द इम्प्लीमेंटेशन, और बराबर कोई क्राइम के रिलेटेड कोई सज़ा सुना दी गई हो तो उसको पोस्टपोन भी करवा सकता है। और कैन चेंज द नेचर ऑफ द पनिशमेंट, और पनिशमेंट जो दी गई है उसको भी बदलवा सकता है। ही समन्स द सेशन ऑफ द बोथ द हाउस मीन्स अपर हाउस एंड लोअर हाउस, दोनों को वो समन भेज सकता है ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रोग्रेस देम, और उनकी प्रोग्रेस को बढ़ा सकता है। ही कैन इवन डिजॉल्व द लोकसभा, वो लोकसभा को भी डिजॉल्व कर सकता है। इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन्ड बाय अ वॉर, जनरल aggressions or armed revolution, he can declare a state emergency for the whole India or any of its part। बराबर स्टेट इमरजेंसी जो होती है वो डिक्लेयर करने का जो अथॉरिटी होती है वो भी प्रेसिडेंट के पास होती है बराबर है, तो वो उस अपने हिसाब से वो डिक्लेयर कर सकता है। ही डिक्लेयर द इमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, और उसने अगर कोई इमरजेंसी, इफ प्रेसिडेंट वंस डिक्लेयर द इमरजेंसी तो कोई उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकता है। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के रिपोर्ट के जो भेजता है उसके बेस्ड के ऊपर प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, बराबर प्रेसिडेंट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है स्टेट के अंदर। ही कैन एस्टैब्लिश द प्रेसिडेंट रूल by dissolving the state cabinet ministry. In case of the financial emergency, the president can reduce the salaries of the government officer। अगर इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तो प्रेसिडेंट के पास वो अथॉरिटी होती है कि वो सैलरी जो होती है उसको रिड्यूस कर सकता है गवर्नमेंट ऑफिसर की, जज की, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के थ्रू। द प्रेसिडेंट हैज़ अ वास्ट एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। प्रेसिडेंट को इतने सारे पावर होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर, बहुत ज़्यादा होते हैं। थ्रू द ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव कैन बी कंसिडरेड द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली एंड डन बाय द नेम ओनली। इन द रियलिटी प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एन्जॉयज देयर पावर। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर होते हैं वो अपने पावर खुद एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट। ओके, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है इन द एब्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है, इन द केस ऑफ द एब्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट के जो काम होता है वो होता है प्रेसिडेंट के जो काम होते हैं वो उनके एब्सेंट में करने का। द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन इज कैरिड आउट बाय द member of the both houses। okay, whatever the vice president election was carried barabar with the member of the both the house, upper house and the lower house of the parliament. The term period of the vice president is also about 5 years only. The vice president is the chairman of the Rajya Sabha. See, this is very important. Who is the chairman of the Rajya Sabha? Vice president is the chairman of the Rajya Sabha. The president submit his रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को कोई कारण की वजह से वॉट एवर द रीजन्स वर देन इन द केस ऑफ द सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन, उसको अगर रेजिग्नेशन देना पड़े तो वो किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। नेक्स्ट इज पावरफुल पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रियल हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है।
The prime minister is the head of the party who has achieved a majority in a general election. जो जनरल इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट के थ्रू जीतता है लोकसभा के इलेक्शन के अंदर, और उसका जो हेड होता है उसको क्या बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. ही इज़ अपॉइंटेड द फॉर्मली बाय द प्रेसिडेंट, और उसको फॉर्मली प्रेसिडेंट के थ्रू ऑथ दिलाई जाती है. द मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट आर अपॉइंटेड एज पर द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ओके, वट एवर द काउंसिल विल डन बाय द प्राइम मिनिस्टर, उस हिसाब से कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्रालय जो होता है वो तय किया जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर करता है. ही डिस्ट्रीब्यूट द प्रोटोफोलिस एनी मिनिस्टर आइदर टू बी टेकन लेफ्ट और कंटिन्यू, और कैबिनेट इज डिस्कस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ये प्राइम मिनिस्टर के हक होते हैं, मतलब उसके पावर होते हैं. He presides over the meetings of the cabinet and also look after the functioning of the various department. बराबर, मीटिंग हैंडल करने का, अलग अलग डिपार्टमेंट के काम देखने का, कैबिनेट के काम देखने का, ये सब जो पावर होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है. ही टेक्स द प्रिवॉट डिसीजन. ओके, जो इमरजेंसी डिसीजन होते हैं वो तुरंत वो ले सकता है. प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन. प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो प्लानिंग कमीशन का हेड होता है, विच इज़ नोन एज द पॉलिसी कमीशन, जिसको प्लानिंग कमीशन को क्या कहा जाता है, पॉलिसी कमीशन भी कहा जाता है. देयर आर 3 लेवल ऑफ द मिनिस्टर अंडर द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के अंदर आप इफ़ यू आर टॉक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर और उसके अंडर की बात करें तो 3 मिनिस्टर होते हैं. एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डेप्यूटी मिनिस्टर. बराबर, 3 लेवल ऑफ द मिनिस्टर. नाम याद रखना, प्राइम मिनिस्टर के अंडर 3 होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं. द प्राइम मिनिस्टर शुड बी द मेंबर ऑफ द वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. बराबर, कोई भी पार्लियामेंट के हाउसेज का कोई भी मेंबर वो हो सकता है. मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट. बराबर, जो दूसरे मिनिस्टर, दूसरे जो मंत्री होते हैं वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द लोकसभा. इफ द लोकसभा रिजेक्ट्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑन अ पर्टिकुलर इश्यू, अगर कोई इश्यू के ऊपर लोकसभा जो होते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं, इट इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर फॉर द सब्जेक्ट बट होल काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर मस्ट बी एक्सेप्ट द. कोई एक पर्सन के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसको फिर से रिसाइन के लिए भेजा जाता है. नाउ अब हम बात करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक और डिस्कस अबाउट द स्टेट एग्जीक्यूटिव. स्टेट एग्जीक्यूटिव में सबसे जो हेड होता है, जैसे सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट होता है, वैसे स्टेट लेवल के ऊपर कौन होता है, गवर्नर होता है. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट कौन करता है, इंडिया का प्रेसिडेंट करता है. ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, बराबर, मंत्रिमंडल उसके एडवाइस के थ्रू जो प्रेसिडेंट होता है वो गवर्नर को अपॉइंट करता है. द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ पर्सन एज अ गवर्नमेंट मोर देन वन स्टेट. बराबर, एक स्टेट के अंदर एक ही गवर्नर जो होता है उसको अपॉइंट किया जाता है. एनी सिटीजन, अब उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 35 ईयर्स और एज वो बन सकता है. द टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट कितना होता है, 5 ईयर्स होता है. होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर of the president can be removed from the office even before expiry of his term can be also transferred to any other state as the governor. बराबर, उसको ट्रांसफ़र भी करवाया जा सकता है और ये अथॉरिटी किसके पास होती है, गवर्नर के पास होती है. द गवर्नर इज द सॉरी ये प्रेसिडेंट के पास होती है. द गवर्नर is the constitutional and the formal head of the state. Okay, constitutional और formal head होता है state का. All the executive power of the state government are vested in him. बराबर, गवर्नर के जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मल हेड होता है वो कौन होता है, स्टेट का कौन होता है, गवर्नर होता है. ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, वट एवर द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर देयर, जो स्टेट के होते हैं, गवर्नमेंट आर वेस्टेड ऑन हिम, वो गवर्नमेंट उसके ऊपर रखती है. ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर. बराबर, ही चीफ मिनिस्टर को अथॉरिटी दिलाने का काम भी वो करते हैं. ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, और उसकी अथॉरिटी क्या है, विच आर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर. तो चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर जो स्टेट लेवल का हेड होता है वो, और उसकी जो अथॉरिटी होती है गवर्नर की वो क्या होती है, ये अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल. वो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कर सकता है, चेयरमैन को अपॉइंट कर सकता है, मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को भी
वो अपॉइंट कर सकता है. ही इज कंसल्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के लिए वो प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट कर सकता है, और उसके बाद हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने की अथॉरिटी भी गवर्नर के पास होती है. द गवर्नर हैज़ अ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव पावर. गवर्नर हैज़ अ सिग्निफिकेंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेजिस्लेटिव पावर होते हैं. ही summon and prorogues the session of the state legislative. He can dissolve the state assembly before expiry of its full term. बराबर. He can also issue the ordinance. A bill passed by the state legislative can become act only by after the government. और गवर्नर जो होता है उसके साइन के बाद ही जो बिल होता है वो एक्ट बनता है. The position of the governor in a state is a similar. जो प्रेसिडेंट की सेंट्रल लेवल पे जो पोजीशन होती है वो सेम पोजीशन स्टेट लेवल पे किसकी होती है, गवर्नर की होती है. हिज पावर्स आर एक्चुअली exercised by the council of minister headed by the chief minister, but the governor can exercise certain power independently also. वो अपने जो पावर होते हैं वो खुद अपने यूज़ कर सकता है. नॉर्मली द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज को ऑफिशियो का chancellor of all the universities of the state. A governor can belong to any political party. बराबर. गवर्नर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग हो सकता है, लेकिन अगर एक बार वो गवर्नर की पोस्ट पे आ गया तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर नहीं कर सकता. वो उसको इम्पार्शियली उसको काम करना पड़ता है. यहाँ पे लिखा हुआ है बट आफ्टर एज्यूमिंग हिज पोस्ट द गवर्नर हैज़ नो परफॉर्म हिज ड्यूटीज द गवर्नर हैज़ टू परफॉर्म हिज ड्यूटी फ्रीली एंड इम्पार्शियली. बराबर. उसको इम्पार्शियली मतलब किसी भी तरीके के भेदभाव के बगैर उसको अपनी जो ड्यूटी है वो निभानी होती है. ओके, टिल हियर वी स्टॉप्ड आवर एक्सप्लेनेशन in this video. बराबर है. I hope you guys can understand what is there in this video. बराबर. various type of the post, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, उसके अलग अलग पोस्ट के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर स्टडी किया. बराबर. in our next video we will discuss about the remaining part of the lesson. Whatever the question answers are there related to this video, that I will send you to the PDF. You have to write down that in your notebook. In our next video we will discuss about the next part of the lesson. Okay, bye, take care.